26 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो उनका शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था वो जारी रहेगा। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक उन्हें उनकी पोस्ट से हटा नहीं दिया जाता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आपको बता दूं, कल देर रात अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मिले थे सोनम वांगचुक से। वहां काफ़ी देर तक बातचीत हुई, बाकायदा सारी चीज़ें बताई गई उन्होंने सरकार किन किन चीज़ों पर राज़ी हुई है, उन्हें आश्वासन दिया गया। जिसके बाद जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने अपना 26 दिन से जो अनशन था उसे ख़त्म किया। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए ये भी लिखा कि उन्होंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि फैसला सरकार की तरफ से मिले आश्वासन और सभी पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। हालांकि आज सुबह उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक ने, एक बार आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that threadbare discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I'm no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students
maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh, and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. Thank you. सर मैं आपको मॉनिटर Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Just sit up a bit. And Gitanjali, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings as well. Hare Monkey. So, want to have some milk also? No, please follow the diet. One minute. They will be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. To some people, huh? My doctors here have been very, very kind and very dedicated. I want to thank the whole hospital, and also at Safdarjung, they were very good, very dedicated. There were issues, but as a hospital, I don't want to give a message that government hospitals are No, any less. doctors are most unpolitical, I've seen. Thank you all doctors here and doctors at Safdarjung Thank you. Hospital. Thank you. Both. Thank you. All right. Yes, sir. Suffocating. आपको बता दूं दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करी। पीएम मोदी ने लिखा कि सोनम जी डॉक्टरों की सलाह का पालन करें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और जल्द ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। अब 26 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लेकिन इस बीच जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनकी तरफ से एक साफ तौर पर यह बयान आया है। जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने पीएम मोदी के बयान को दिखावा करार दे दिया है। रात 11:52 पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश भी आया, जिसके 48 मिनट के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान किया था। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सरकारी आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन समाप्त हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा है। अब इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि का अपमान ना करें, प्रधान को बर्खास्त करें, उन्हें पीटने वालों को दंडित करें और माफ़ी मांगें। ये 3 चीज़ें राहुल गांधी ने लिखी हैं अपने एक्स पर। साथ ही साथ आपको बता दूं, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि इस पूरे मामले में जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनका प्रोटेस्ट पीसफुल है और वो इसी पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। आपको बता दूं, साथ ही साथ अभिजीत दीप के जो हैं उनका एक वीडियो और आया है और उन्होंने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा है
कि सोनम सर ने अपना जो हंगर स्ट्राइक थी, जो उनकी भूख हड़ताल थी, आखिरकार 26 दिन के बाद ख़त्म कर दी है और उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बात अपनी वीडियो में कही। क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। दोस्तों, सोनम वांगचुक की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? और प्रधानमंत्री ने जो वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में ये मुद्दा उठाया जाएगा, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात उन्होंने अपनी वीडियो में कही है। लेकिन आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो ख़त्म कर दिया है और उन्होंने तभी अपना अनशन ख़त्म किया जब उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगें हैं उस पर विचार किया जाएगा, सदन में ये पूरा मामला उठाया जाएगा और जो गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन आखिर में मैं आपको फिर से सुना जाना चाहता हूं कि अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने इस पूरी चीज़ के बाद क्या कुछ कहा है। बाकी वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू।